GFG problem of the day. Find minimum number of laptops that are required. So you have been given n jobs and the starting time and finish time of those jobs, and you are given the array start and end. Basically, you are telling that, and each job requires one laptop, and that laptop cannot be shared. So basically, each job you want one laptop. That is the thing, and find the minimum number of laptops that are required to complete the job. Uh, that you can give your laptop to someone else when you are not doing your job. Okay, that is the thing. But basically what they are trying to say, let's see the problem. May you have been given number n and the array of size n, and this is basically starting time, this is basically ending time. Now what does this tells us, what does this mean? Let's say if I write over here, this means that some person is basically started using the laptop at time equal to 1 second. One person picked the laptop, right, and he left the laptop at the time equal to 4 seconds. Now at time equal to 2, one person, another person wants another laptop. So can you give the same laptop to him, that the person one is using? You cannot give, because person will not leave the laptop until the time t equal to 4. Then he can share, right? Then the you can give your laptop to someone else when you are not doing the job, but currently you are doing. So you will say, pick the laptop. So currently laptop you will require is one, okay? And then when time equal to 2 comes, you requires laptop 2, because two laptops are busy, and both the person will leave the laptop at time equal to 4. But at time equal to 3 you want another laptop, so time equal to 4 pe they are leaving the laptop, and laptop being used is equal to 0. But now time equal to 3 pe, what is the situation? Currently laptop being used is 2, and then another one came and asked about the laptop, so we have to give him a laptop, and three laptops are being used, and then time equal to 6 pe, laptop time equal to 4 pe, two laptops are being released, and time equal to 6 pe, every laptop is released. So currently laptop is basically no one is using a laptop. And basically that you need to find out कि maximum number of laptop आपको कितने पड़े during this complete operation. 3 is the basically maximum number of laptop that you required, so that everyone can work. Now this problem is basically straightforward आ जाते हैं. If you have been solved this problem, minimum number of platform required for a railway station, yeah, there is a problem like this, exact this problem, minimum platforms required. If you have solved this problem, then this problem is exactly same. You can just try this by submitting a code for this problem, and that will be get submitted for this, because the problems are same basically. What I'm trying to tell you, that this is a basically a standard type of question of what problem. This is merge overlapping subinterval basically type of problem, like the greedy approach. Say we try to solve some questions, na, the some greedy questions, like we told it, like concept of basically, um now basically overlapping subintervals you have to see, like, and you have to basically assign the laptops to a person. So first thing that came into my mind, if for example this is a good example basically, that's why I write it over here. One person is using the laptop, he will leave at time equal to 14. Other person is using a laptop 3, he'll take the laptop at 3, leave at 12. Another will take at 6 and leave at 8. This is basically completely scattered, like first one ने यहाँ पे start करा, and first one will leave up till this point, and second one ने start करा यहाँ पे, second one will leave up to this point, third one ने start करा यहाँ पे, and third one will leave up to this time. As you can see कि 6 to 8 के टाइम पे तीनों लैपटॉप बेसिकली आर बीइंग यूज, ठीक है, तब तक किसी ने लीव ही नहीं करा है. सो टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ लैपटॉप्स यू विल रिक्वायर्ड इज 3. तो बेसिकली इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपना यू नो वी विल नॉट ट्राई टू फाइंड आउट कि कैसे लैपटॉप किसी से ले और कैसे किसी को दें. वी विल जस्ट ट्राई टू जस्ट सॉर्ट इट, एंड बेसिकली हम देखेंगे वन पे एक. अब सॉर्टिंग करने का क्या मतलब है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव दैट, फर्स्ट एरे है कि व्हाट इज द टाइम एट विच लैपटॉप इज बीइंग टेकन. सो लैपटॉप हमें चाहिए 1 सेकंड पे, 3 सेकंड पे एक और लैपटॉप चाहिए, 6 सेकंड पे एक और लैपटॉप चाहिए. और मैंने इस एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, बेसिकली 10 और 14 मैंने ऐड अप कर दिए. सो 10 पे भी एक और लैपटॉप चाहिए, 14 पे एक लैपटॉप चाहिए. पर लैपटॉप हमें चाहिए, हर टाइम हमें लैपटॉप, नया लैपटॉप चाहिए, इट्स नॉट नेसेसरी. हम पुराना लैपटॉप जो किसी ने छोड़ा है हम वो भी यूज कर सकते हैं, राइट? तो अब देखना है कि लैपटॉप कब छोड़ेंगे. जैसे वन तो एग्जैक्टली छोड़ेगा 14 सेकंड पे, पर ऐसा क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि 14 से पहले कोई शेयरिंग अलाउड ही नहीं है? नहीं यार, 3 वाला तो 6 पे छोड़ देगा. तो मैं एक काम करूंगा, जो 3 वाले ने 6 टाइम पे अपना लैपटॉप, सॉरी 6 से 8 टाइम पे अपना लैपटॉप छोड़ा है, तो मैं बोलूंगा ओके, सो दिस लैपटॉप इज नाउ फ्री. ठीक है,
तो मैं ऐसा ट्रीट करके चलूँगा कि वन ने वो लैपटॉप छोड़ा है। या फिर तुम कुछ भी मत सोचो, तो तुम्हें बस इतना सोचना है कि लैपटॉप हमने उठाया किस टाइम पे और लैपटॉप हमने छोड़ा किस टाइम पे। सो करंटली फर्स्ट लैपटॉप इज़ बीइंग यूज्ड फ्रॉम टाइम इक्वल टू 1 सेकंड और फर्स्ट लैपटॉप रिलीज़ कब हुआ? टाइम इक्वल टू 8 सेकंड पे। तो अब कोई ऐसा नया बंदा आ सकता है जो टाइम इक्वल टू लाइक जिसका स्टार्टिंग टाइम ग्रेटर देन 8 है, तो मैं उसको ये सेम लैपटॉप दे सकता हूँ ना। सो व्हाई टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ लैपटॉप? अगर यहाँ पे कोई आस्क कर रहा होता लैपटॉप के लिए, 2 ही बंदे होते। एक होता कि आपने मैं छोड़ो इसको, मैं चिढ़ता नहीं हूँ। मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 1 ने लैपटॉप शुरू करा 1 से 12 तक और सेकंड पर्सन आया, उसको चाहिए भाई 3 से लेके 4 तक, ठीक है? तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई 1 पे एक लैपटॉप उठाया गया, 12 पे दूसरा नहीं 3 पे दूसरा लैपटॉप उठाया गया, 1 पे सॉर्टिंग टाइम में इसका भी देखूँगा तो 4 पे एक लैपटॉप छोड़ा गया। अब ये 3 ने छोड़ा है ये मेरे को नहीं पता, बस छोड़ा गया है, ठीक है? और 12 पे दूसरा लैपटॉप छोड़ा गया है, ठीक है? अब मान लो तीसरा बंदा आता है कि वो कहता है मेरे को टाइम टाइम इक्वल टू लेट्स से 5 पे एक लैपटॉप चाहिए और मेरे को 3 मिनट का काम है, मेरे को 8 मिनट पे मैं छोड़ दूँगा, ठीक है? सो थर्ड पर्सन केम 5 से लेके 8, ठीक है? तो ये 5 वाला पता है क्या करेगा? ये वाला उठा लेगा, जो ये 4 से जो लैपटॉप छूटा है ना, एक्चुअली ये थर्ड वाले पर्सन ने छोड़ा है, पर हमें बस काउंट से मतलब है बिकॉज़ वी आर ट्राइंग टू फाइंड द मैक्सिमम काउंट। हम ये नहीं देख रहे कि किसने लैपटॉप उठाया, किसने कब लैपटॉप छोड़ा। हमें बस काउंट से मतलब है कि 3 सेकंड पे या फिर 4 सेकंड पे एक लैपटॉप हमें रिलीज़ हो गया, सो वी कैन गिव एट 5 सेकंड टू दैट वन पर्सन। तो इसके लिए मैं आंसर कैसे कैलकुलेट करूँगा? मैं चेक करूँगा कि 1 पे लैपटॉप उठा 4, अब जैसे नेक्स्ट टाइम 3 आया, तो 3 पे करंटली जो प्रीवियस लैपटॉप है वो दैट इज़ बीइंग यूज्ड। जबकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 पे वो लैपटॉप आया था और 4 पे उस बंदे ने छोड़ा था। बट मैं क्योंकि मेरे को टाइम से मैटर नहीं करता, तो इसलिए मैं ऐसे सॉर्ट कर सकता हूँ। इसका और लॉजिकल रीज़न चाहिए, तुम ऐसा सोचो कि 1 ने 1 से लेके 4 पे अपने लैपटॉप पे काम करा, ठीक है? और क्योंकि 4 पे 3 वाले ने लैपटॉप छोड़ दिया ना, तो 1 ने 3 वाले से एक्सचेंज कर लिया लैपटॉप। तो अब 3 वाले का लैपटॉप मतलब बेसिकली हम ऐसा ट्रीट करेंगे, 1 ने बस 1 से लेके 4 पे एक लैपटॉप पे काम करा और उसने वो छोड़ दिया। हमने ये नहीं देखा कि उसने उठा लिया 3 वाले का, क्योंकि 3 वाले को तो फिर 4 पे छोड़ देना चाहिए था। अब 3 वाला 12 तक क्यों नहीं छोड़ रहा? बिकॉज़ जो काम है 1 से लेके 12 तक होने वाला है फर्स्ट का काम। तो जो मैंने सेकंड लैपटॉप उठाया था थर्ड टाइम पे, वो उसका काम चलता रहेगा 12 सेकंड तक, क्योंकि अब उसपे कौन काम कर रहा है? अब इसपे 1 काम कर रहा है। तो मतलब मान लो फर्स्ट पर्सन यहाँ बैठा था, थर्ड पर्सन यहाँ बैठा था, सेकंड पर्सन यहाँ पे बैठा था। इसने लैपटॉप उठाया थर्ड सेकंड पे, ठीक है? इसका काम हो गया 4 सेकंड तक, इसने छोड़ दिया। इसने फर्स्ट सेकंड पे उठाया था, इसको 12 सेकंड तक का काम था। तो इसने क्या करा, इसने बोला ठीक है मैं अपना लैपटॉप छोड़ देता हूँ, तू मेरे को अपना लैपटॉप दे दे। तो यहाँ पे अब जो काम हो रहा है बेसिकली जो लैपटॉप जिस पे काम होना स्टार्ट हुआ था थर्ड सेकंड पे, उस पे काम चलता रहेगा 12 सेकंड पे, क्योंकि अब काम पहले इस पे 3 ने करा, सेकंड पर्सन ने करा, फिर अब इस पे फर्स्ट पर्सन काम करने लगा। और जो फर्स्ट सेकंड पे लैपटॉप उठाया गया था फर्स्ट पर्सन के द्वारा, वो 4 सेकंड पे छूट गया क्योंकि उसने एक्सचेंज कर लिया था 3 वाले के साथ। तो ये वो वाला लैपटॉप है, ये वो लैपटॉप नहीं है जो सेकंड पर्सन ने उठाया है। हाँ, ये बेसिकली वही लैपटॉप है जो सेकंड पर्सन ने उठाया है, पर वो फिर एक्सचेंज हो गया, तो फिर अब फर्स्ट पर्सन इस पे काम कर रहा है, ठीक है? और ये वाला वो लैपटॉप है जो फर्स्ट पर्सन ने उठाया था और इसने 4 सेकंड पे छोड़ दिया क्योंकि सेकंड पर्सन ने लैपटॉप छोड़ दिया था अपना 4th सेकंड पे। तो बेसिकली ऐसा कुछ लॉजिक लगा सकते हो। अगर बेसिकली देखना है तो ऐसे ये सबसे सिंपल लॉजिक है कि तुम ऐसे देखो कि फर्स्ट से पर्सन ने लैपटॉप उठाया, किस सेकंड पे उठाया और फिर पहली बार हम लैपटॉप छोड़ कर रहे हैं। ये पहली बार उठाया मैंने, पहली बार लैपटॉप छोड़ रहा हूँ 8 सेकंड पे, तो अब 8 से बड़ा जो भी बंदा आएगा, पहली बार लैपटॉप छोड़ रहा हूँ मतलब 8 से पहले मैंने कोई लैपटॉप छोड़ा ही नहीं। लेट्स से 6-7 सेकंड पे कोई लैपटॉप रिलीज़ ही नहीं हुआ। पहली बार रिलीज़ हुआ एक लैपटॉप फ्री हुआ 8 सेकंड पे। तो अब जो 10 सेकंड पे दोबारा पर्सन आएगा काम करने के लिए, उसको मैं ये सेम वाला लैपटॉप दे सकूँ, मेरे को एक्स्ट्रा लैपटॉप की नीड नहीं है। तो अब इस केस में एग्ज़ाम्पल में चेक करते हैं। जैसे 8 आया, अब सेकंड पर्सन माँग रहा है 3 पे, तो इसको तो सेम लैपटॉप दे नहीं सकता, तो काउंटर को प्लस-प्लस कर दो कि भाई 2 लैपटॉप चाहिए। फिर तुम्हारा आया 12 पे छोड़ेगा ये, इसको तो देखना ही नहीं है, अभी तक तुम्हारा 8 वाला काम ही खत्म नहीं हुआ, ठीक है? मतलब किसी ने अभी तक रिलीज़ नहीं करा है। तो 6 से पूछूँगा कि भाई किसी ने लैपटॉप रिलीज़ कर दिया क्या? मिनिमम रिलीज़ टाइम तुम्हारा 8 है, ठीक है? तो अभी तक किसी ने भी रिलीज़ नहीं करा भाई, तो फिर तुमको भी नया लैपटॉप चाहिए, काउंटर को प्लस-प्लस कर दो। 10 आया कि भाई 10 तक किसी ने रिलीज़ कर दिया, एक्चुअली 10 तक 8 ने रिलीज़ कर दिया। मान लो इसका टाइम 9 होता तो इसने भी रिलीज़ कर दिया था, ठीक है? पर मैं इसको कौन सा दूँगा? जो पहले रिलीज़ हुआ है, ठीक है? 8 पे सेकंड पे जो भी रिलीज़ हुआ था, मैंने 10 वाले को दे दिया। ये अपना काम करने लगेगा, अब 15 सेकंड तक इसका काम चलेगा। तो शायद तुम यहाँ पे ऐसा लिखना चाहो, तुम लिख सकते हो कि अब ये वाला लैपटॉप जो 8 सेकंड पे रिलीज़ हुआ, ये 10 से उठा और फिर 15 तक चला गया, ठीक है? तो अब तुम्हारे पास अब जो अगला लैपटॉप है, अब ये कब फ्री होगा? अब 9 सेकंड पे फ्री होगा, क्योंकि जो 8 तक सेकंड पे लैपटॉप जो शुरू हुआ था, मतलब 8 सेकंड पे जो लैपटॉप फ्री हुआ था, वो चला गया इस बंदे के पास जिसको 10 सेकंड पे काम स्टार्ट करना था, और अब उस पे
काम होता रहेगा 15 सेकंड तक, ठीक है। तो ये चीज है कि अब जो 9 सेकंड पे बंदा आएगा, अब लैपटॉप फ्री होगा तुम्हारा 9 सेकंड पे। अब जब 14 सेकंड पे बंदा आएगा, वो पूछेगा कि 14 सेकंड तक कोई लैपटॉप फ्री है, तो ये वाला लैपटॉप फ्री नहीं है जो फर्स्ट वाला पहले फ्री था, क्योंकि उसमें पे 10 वाले ने काम करना स्टार्ट कर दिया और ये अपना काम अपना करे जा रहा है, तो इसको यहाँ से हटा भी सकते हो मतलब देखने के लिए। और क्योंकि वो हट चुका है ऑलरेडी, क्योंकि तुम इंडेक्स आगे बढ़ चुके हो, तो अब उसको भूल जाओ, ठीक है। और 14 आ गया, अब 14 ने बोला कि भाई 9 सेकंड तक ये वाला खाली हो जाएगा, तो मैं इसको यूज कर लूंगा। तो 14 अब इस वाले को हम कल चलता रहेगा 16 तक। तो ऐसे बेसिकली आपका मैक्सिमम कितने लैपटॉप यूज हुए, 3 ही लैपटॉप यूज हुए आपके। और उसके बाद ये चीज है बेसिकली प्रॉब्लम में। तो इसको करने के लिए देखो कैसे करा हमने, कि सबसे पहले अपना इंट जेड इक्वल टू 1 बेसिकली काउंटर है मेरे कितने लैपटॉप, सॉर्ट कर लिए सबसे पहले तो स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम को, जैसा मैंने लॉजिक बताया कि कब लैपटॉप उठा रहे हैं और कब लैपटॉप छोड़ रहे हैं। और जैसे किसी ने लैपटॉप छोड़ दिया, कोई ऐसा बंदा आएगा जिसको उस लैपटॉप की जो उस लैपटॉप को रीयूज कर सकता है। ये दोनों तो रीयूज कर ही नहीं सकते, तो पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। ये रीयूज कर सकता है, तो मैं इसको रीयूज करा दूंगा। मैं बोल दूंगा कि अगर ई एक्स इज ग्रेटर देन एस एक्स। अब देखो ई एक्स का मतलब क्या है, कि एंडिंग टाइम जो मैंने एक्स इक्वल टू 0 से स्टार्ट करा, पहला लैपटॉप कब छूट रहा है भाई। तो इसने बोला 8 सेकंड पे छूट रहा है, विच इज ग्रेटर देन स्टार्टिंग टाइम ऑफ 2। तो मैं बोलूंगा नया लैपटॉप लाओ, नया लैपटॉप लाओ। जैसे ही 10 हो गया, तो अब ई एक्स जो 8 था, वो छोटा हो गया 10 से। तो मैंने बोला ठीक है भाई, इसको दे देते हैं, तो एल्स कर दो एक्स प्लस प्लस, ठीक है। अब तुमने इसको दे दिया। अब जो तुम्हारा एंडिंग टाइम है, वो नेक्स्ट एंडिंग टाइम पे चले जाओ भाई। नेक्स्ट कब छूट रहा था अगला वाला लैपटॉप, हो सकता है वो ऑलरेडी छूट चुका हो 10 सेकंड तक, जैसे ये छूट चुका है। हो सकता है वो थोड़ी देर बाद छूटने वाला, जैसे 12 पे छूटने वाला था। सो 12 पे वो रिलीज हो जाएगा, और फिर अभी 12 के कंपैरिजन में सारी चीजें चलेंगी। मान लो इसके बाद कोई और बंदा आता जो 13 पे नहीं, 14 पे उठाया इसने, ये 16 पे उठाने का बोल देता, और ये बोल देता भाई मेरे को छोड़ना है, काम है मेरे को 4 मिनट का, तो 20 पे छोड़ूंगा मैं। फिर हो सकता है ये लेके रखे 28 पे छोड़े, और 22 वाला आएगा, वो बोलेगा भाई मेरे को तो 1 ही मिनट का काम है, 23 पे मैंने छोड़ दिया। और इसके बाद एक और पर्सन आएगा जो 23 पे उठाएगा, ये बोलेगा मेरे को भी 1 मिनट का काम है, 24 पे छोड़ दिया। फिर 24 पे कोई बंदा उठा लेगा, ये बोलेगा मेरे को 2 मिनट का काम है, 26 पे छोड़ दिया। तो अब देखते हैं इसके लिए कैसा हो रहा होगा। तो जब 10 वाले पे आया, तो इसने ये लैपटॉप उठा लिया। इस लैपटॉप के टाइम अब बेसिकली 15 हो गया, कि भाई 15 तक अब कोई और लैपटॉप, मतलब बेसिकली तुम्हारे 12 तक अब और कोई लैपटॉप नहीं है, क्योंकि इसका सॉर्टिंग मतलब मिनिमम तो अभी 12 है ना। तो अब देखा ठीक 14 आया, ठीक है इसको ही सेम लैपटॉप दे दो। तो ये 16 तक इस पे काम होता रहेगा। तो अगला लैपटॉप कब रिलीज हो रहा है भाई, 14 पे रिलीज हो रहा है। अब तुम्हें कितने को देना है, बेसिकली 4 बंदों को और देना है। तो 14 वाला क्या मैं 16 वाले को दे सकता हूँ? हाँ तुम दे सकते हो 16 वाले को। तो तुमने बोला कि भाई ये अब ये 28 पे छूटेगा, ये काफी देर तक नहीं छूटेगा। पर अगर लैपटॉप 15 पे छूट गया, क्योंकि हम्म हाँ, क्योंकि जो काम 15 पे खत्म होना था, वो काम 15 पे खत्म हो गया। तो अब ये वाला लैपटॉप तुम इस तरह से देख लो, या फिर इस तरह से देख लो। 15 पे बेसिकली आपका एक और नया लैपटॉप छूट गया, जो पहले आपने 1 से लेके उस पे काम करा था 8 सेकंड तक, फिर 10 से लेके काम करा 15 सेकंड तक। अभी जैसे कि 14 सेकंड तक वो नहीं छूटा था, इसलिए मेरे को इसको ये वाला देना पड़ा था। और फिर 16 सेकंड पे अच्छा, और फिर 16 तक इस पे काम हुआ था। अब जब 16 वाला आया है, इसको मैंने ये वाला लैपटॉप दिया होगा जो पहले ही छूट रखा था। अब जो 22 पे आया है, अब भी तुम्हारा 15 वाला भी फ्री हो चुका है, ठीक है। हम ऑर्डर वाइज चल रहे हैं। चाहे तो हम उसको वो 16 वाले को वो दे सकते थे जो 15 वाला छुटा है, बट हमारे पास ऑलरेडी ऐसा पड़ा था जो 14 पे छूट रखा था, तो उसको वो वाला दे दिया। तो हो सकता है तो 14 वाला इसके लिए बचा के रख लो, पर उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो पॉइंट इज की 22 वाले को एक ऐसा लैपटॉप मिलेगा जो ऑलरेडी किसी ने रिलीज कर रखा है। तो वो 15 पे अब वो बेसिकली काम करेगा, अपना 23 पे रिलीज कर दे, और फिर इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 23 पे उसने रिलीज करा, तो 23 पे ही दूसरे ने मांगा, वो उसको दे देगा। और फिर 24 पे रिलीज करेगा, फिर 26 पे रिलीज करेगा। तो ओनली 4 लैपटॉप में आई थिंक तुम्हारा काम हो रहा होगा। एक बार मैं इसको दोबारा चला के देखता हूँ, और इसको एक बार रन करके देखता हूँ ना। दिस वाज द होल थिंग। इसको हम टेस्ट केस को चला के देखते हैं। आंसर तुम्हारा 4 आना चाहिए, ठीक है। कंपाइल कस्टम इनपुट पहले देख लेते हैं। इस पे तो चल रहा है, इस पे चला के देखते हैं। अब ये मेरे को नहीं पता इसके अंदर कितने नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर्स हैं। ओके, 3 ही लैपटॉप में काम हो जाएगा, देखते हैं 3 लैपटॉप में कैसे। 1 से लेके अच्छा ये 3 नंबर में, ओ ओके ओके ओके। हाँ 3 ही लैपटॉप तो लगे। वो जो 15 वाला था वो मैंने ऑलरेडी रिमूव कर चुका था, क्योंकि 10 वाला मैंने इसको दिया था। इफ यू सी क्लियरफुली, दोबारा दिखा देता हूँ मैं। मैंने इस टाइम पे जब बोला था कि हम्म, छोड़ो वो डिलीट हो गया। बट हाँ 3 ही लगे थे बेसिकली 16, क्योंकि ये 10 वाला जब रीयूज होना जब से स्टार्ट हो गया था, उसके बाद से एक बार जल्दी से ड्राई रन दोबारा करा देता हूँ मैं।
वो 26 था, ठीक है। 1 पे स्टार्ट हुआ, 8 पे छोड़ा, तो 3 और 6 को नया लैपटॉप चाहिए, 10 वाला ये यूज़ कर लेगा, 8 वाला। तो मैंने बोला 10 वाले ने यूज़ कर लिया, इसको यहाँ से हटा दो। अब तुम्हारा छूटेगा लिस्ट 15 टाइम पे छूट जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। और वो हमने बोला है कि वो यहाँ से हट गया, पर वो यहाँ से हटा नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो द थिंग कि 15 वाला यहाँ पे प्रेज़ेंट है। तुम्हारा पॉइंटर मैं बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, पॉइंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब तुम आई पे गए, यहाँ पे 15 हो गया इसका टाइम। तुमने बोला कि नेक्स्ट कब छूट रहा है, तुम्हारा 12 पे छूट रहा है, तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो, तुम आई को प्लस प्लस कर जाओ, ठीक है। और इसके नीचे लिख दो 14, ठीक है। तो तुम्हें ये देखना है बेसिकली कि हाँ, कौन-कौन से मैंने ये वाला अभी तक यूज़ ही नहीं करा, ये वाला लैपटॉप मतलब बेसिकली हमने अभी तक 3 ही लैपटॉप में काम चला रहे हैं, नए लैपटॉप नीड की नीड नहीं आई अभी। फिर 16 पे अब देखो, जैसे ये 6 वाला शुरू हुआ था, 14 पे खत्म हुआ था इसका काम, है ना? ये 14 से शुरू हुआ और अब ये 16 तक इसका काम चलेगा, ठीक है। और ये 14 पे एक और काम खत्म हो चुका था, तो ये वाला लैपटॉप सेम उठा के इसको दे दो और इसका यहाँ पे लिख दो 28, ठीक है। 28 तक इस पे काम चलेगा। अब 15 पे एक और नया लैपटॉप रिलीज़ हो गया, ठीक है? तो 22 वाला आया, तो मैंने बोला इसको 22 को लैपटॉप दो और 23 तक इस पे काम करते रहो, ठीक है? नए लैपटॉप की अभी तक कोई नीड नहीं पड़ी है और फिर हम इसका आगे चले गए। अब 23 वाला जो काम है ये रिलीज़ करा इसने। रिलीज़ तो ये दोनों भी कर चुके हैं, जो 15 पे काम कर रहे थे और जो 16 पे काम कर रहे थे। तो या तो तुम उनको दे दो या तो 23 का वाला इसको दे दो, 24 को दे दो, ठीक है? तो ये 3 ऑप्शंस है आपके पास, कोई सा भी लैपटॉप उठा के इनको दे सकते हो और सिमिलरली आगे वाले के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है? ये 3 तो फ्री हो चुके हैं, आपके पास 1 ही नया बचा है। तो बेसिकली ऐसा ही है टास्क, बेसिकली आपको सॉर्टिंग करनी होती है, फिर आपको चेक करना होता है कि कब एक लैपटॉप नया तुम्हें नीड है किसी लैपटॉप की और पुराना लैपटॉप जो कौन-कौन सा लैपटॉप तुम किस-किस टाइम पे रिलीज़ करते जा रहे हो। तो जैसे ही मतलब रिलीज़ का टाइम अगर तुम्हारे इतने रिलीज़ हो चुके हैं कि आपके नए वाले को अकोमोडेट करा सकते हैं, तो हम उसके लिए प्लस-प्लस नहीं करेंगे और उसके लिए हम बोलेंगे कि तुमने ये वाला नया लैपटॉप ले लिया तो अब अपने रिलीज़ टाइम अगले नेक्स्ट रिलीज़ टाइम पे चले जाओ कि नेक्स्ट रिलीज़ कब हो रहा है, नेक्स्ट रिलीज़ कब हो रहा है। और जब ऐसा नहीं है, अकोमोडेशन नहीं करा पा रहे तुम, कि अभी तक कोई लैपटॉप रिलीज़ ही नहीं हुआ, तो तुम नेक्स्ट मतलब उसको आगे बढ़ा दोगे अपने एक और लैपटॉप तुमने ले लिया और तुम उसको आगे-आगे बढ़ाते जाओगे, राइट? ठीक है? आई पाई पॉइंटर को आगे-आगे बढ़ाते जाओगे, बेसिकली काउंट को इंक्रीज़ करते जाओगे और हाँ, दैट्स अबाउट इट। ओके गाइस, सबमिट कर देते हैं इसे। पर ये टाइप है, बेसिकली एक स्टैंडर्ड टाइप है ये, ग्रीडी प्रॉब्लम्स होती हैं ये, जो जैसे मैंने बताया, मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफ़ॉर्म्स वाली, और ये बेसिकली सब ये इंटरवल वाली प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो ग्रीडी मेथड से सॉल्व होती हैं। तो ये टाइप बेसिकली करनी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली काफ़ी पूछी जाती है। ओके गाइस, बाय।